عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ سو دیٹ یو آل آر ڈوئنگ گڈ۔ ہمارا جو سیکنڈ چیپٹر ہے اس کو ہم لوگ کر رہے ہیں، اس میں ہم لوگ جو آگے فردر ہے، جو آج کے لیکچر میں ہم لوگ چیزیں ڈسکس کریں گے وہ ہے ہندوازم، مطلب جو ہندوؤں کا مذہب ہے ان کا کیا مطلب ان کے بلیو ہیں، ان کو کس طرح کی چیزوں کو مانتے ہیں، کیا ان کے کسٹم ہیں، ٹریڈیشن ہیں۔ ویسے تو یہ ایک بہت ہی اسلام ہے یا عیسائیت ہے یا ہندو مت ہے، کوئی بھی مذہب ہم لوگ دیکھ لیں تو وہ بہت ہی واسٹ سبجیکٹ ہوتا ہے، مین وہ بہت ہی بڑا ہے، اس کے اوپر بہت ڈسکشن کی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ لوگوں کی کلاس اور اسٹینڈرڈ کے مطابق جتنا آپ لوگوں کو دیا گیا ہے اس کو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے ڈسکس کر پائیں۔ پہلے میں انگلش کی ریڈنگ کروں گی، دین آپ لوگوں کو اس کو ٹوٹل اردو میں بتاؤں گی اور پھر ہم دوبارہ اسی کی چیز کو ایک دفعہ پھر سے ایکسپلین کریں گے۔ Hinduism. Hinduism is an ancient religion. It based upon experiments and social tradition. For this reason, it kept on changing by the passage of time. According to Hinduism, the good or bad deeds of human do not get wasted. He is given punishment or reward in good or bad act. A human being reborn after death in good or bad form. It is based upon on his or her good or bad act. ہندو مت ایک بہت ہی پرانا مذہب ہے جس کی بنیاد تجربات اور معاشرتی روایات پر ہے، اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ انسان کا کوئی بھی اچھا اور برا عمل ضائع نہیں جاتا، بلکہ انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا دی جاتی ہے۔ انسان مرنے کے بعد کسی اچھی یا بری شکل میں پیدا ہوتا ہے جس کا انحصار اس کے اچھے اور برے اعمال پر ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ہندو مت ہے، ان کا جو ریلیجن ہے، مذہب ہے، وہ بہت ہی پرانا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی تبدیلیاں آتی رہی ہیں کہ کوئی چیزیں جو ان کو اچھی لگی یا ان کو لگا کہ یہ ہمارے فائدے کی نہیں ہے، یہ نفع کی نہیں ہے، یہ نقصان کی نہیں ہے، ان کو وہ چھوڑ دے گئے اور کچھ کو وہ اپناتے گئے، یا وقت کے ساتھ ساتھ کوئی علم ان کے پاس پہنچا اور جو نہیں پہنچا وہ ختم ہو گیا، اور جو پہنچا اس میں وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے تبدیلیاں کر لی۔ اس کے ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن جو پریزنٹ ٹائم پہ ان کے پاس ان کا جو ریلیجن ہے اس میں کیا ماننا ہے ان کا کہ انسان جو اپنے اچھے اعمال کرتا ہے اور برے اعمال کرتا ہے وہ ضائع نہیں جاتے، بلکہ اگر انسان اچھے اعمال کرے گا تو اس کی بیس پہ اسے کیا ہوگی، انعام ملے گا، اور برے اعمال کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ ہمارے اسلام میں ایسا ہے کہ انسان قیامت میں جو اچھے اعمال کرے گا اسے جنت ملے گی اور جو برے اعمال کرے گا اسے دوزخ ملے گی۔ مین انسان وہی کاٹتا ہے جو وہ بوتا ہے۔ لیکن ہندوازم میں کیا ہے کہ انسان دوبارہ پیدا ہوتا ہے، ان کے یقین کے مطابق یا ان کے تصور کے مطابق یا ان کے مذہب کے مطابق انسان دوبارہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان وہ اچھی یا بری شکل میں، مطلب جانور کی شکل میں یا دوبارہ کسی انسان کی شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس نے کوئی برا مال کیا ہوگا تو وہ کسی برے جانور کی شکل میں پیدا ہوگا، اور اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا تو وہ دوبارہ انسان کے روپ میں ہی پیدا ہوگا، انسان کی شکل میں ہی پیدا ہوگا۔ یہ ان کی جو پنشمنٹ ہے اور جو ریوارڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسے اسی جنم میں ان کو مل جاتا ہے، ان کے کوئی 7 جنم یا اس طرح کا کوئی سین ہوتا ہے، ہم لوگ ڈراموں میں یا فلموں میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ اتنی چیزیں تھی جو آپ لوگوں کی آپ کے لیے سمجھنا ضروری تھی۔ باقی تو ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں یا ادھر ادھر، لیکن آپ لوگوں کو صرف ان چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے جو آپ لوگوں نے یاد رکھنا۔ نیکسٹ ہے کاسٹ اینڈ کریڈ سسٹم، مین ذات پات کا نظام۔ ہندو سوسائٹی واز ڈیوائڈیڈ انٹو 4 کاسٹ after the arrival of Aryans. These were Brahmins, Kshatri, Vaishya,
and Shudras. Brahmins performed religious duties. They also had monopoly over education. Pandit and religious men belonged to this caste. Kashtari defended the country. Vesh were farmers and traders. The most inferior caste was called Shudras. They performed inferior jobs. They were forcefully kept away from the so-called superior caste of the people. If they touch to any of the person belong to superior caste, they will become wealthy. जो हिंदुइज्म है उसमें चार मतलब कास्ट हैं, चार किस्म के लोग हैं, उनको डिवाइड किया गया है जात पात के निजाम में चार जातों में, कि इधर चार जात में इंसान डिवाइड हुए। सबसे पहले उनकी जात कौन सी है? ब्राह्मण, दूसरी कश्तरी, तीसरी वेश और चौथी है शूद्र। ब्राह्मण कौन होते हैं? ब्राह्मण सबसे ऊंची जात होती है और ये मजहबी रसूमात पूरा करते हैं। मतलब जिस तरह से उनके पंडित वगैरह या हम लोग अपने रिलीजन में या हर कोई अपने रिलीजन में देखता है कि जो उनकी मजहबी रसूमात स्पिरिचुअल चीज़ें जो होती हैं, गॉड से रिलेटेड जो उनकी चीज़ें होती हैं या इस तरह की जो एजुकेशन होती है, वो सारी जो परफॉर्म करते हैं, जो उनका कंट्रोल होता है, जो उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, वो कौन अदा करते हैं? वो ब्राह्मण करते हैं। मतलब सबसे ऊंची जात तस्वर की जाती है स्टेटस के हिसाब से, जात पात के निज़ाम के हिसाब से। दूसरे नंबर पे कौन सी जात आती है? दूसरे नंबर पे उनकी जात आती है कश्तरी कौन सी जात है? कश्तरी को इलाकों की हिफाजत और जंगो जदल का काम सौंपा जाता है। मीन कश्तरी क्या करते हैं कि वो कंट्री को डिफेंड करते हैं। जो फौज, पुलिस और ये सारी जो चीजें आ जाती हैं, ये उनके जिम्मे में आ जाती हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अब कोई फर्द या कोई जो बशिंदा है वो किसी मुल्क में रह रहा होता है, तो हमारे शहरी होने की हैसियत से कुछ फर्ज होते हैं और कुछ हमारी हकूक होते हैं। तो इसी तरह से उनकी जात की बेस पे, उनकी जात पात के निज़ाम की बेस पे उनके कुछ हकूक दिए जाते हैं कि ये काम इस इंसान के जिम्मे है, इस जात के जिम्मे है, और ये काम इस जात के जिम्मे है। तो जो सबसे ऊपर दर्जे की जात है वो कौन सी है? ब्राह्मण है। उन्होंने रिलीजियस ड्यूटी परफॉर्म करनी है। सेकंड नंबर पे खेस्त्री है। उन्होंने क्या करना है? उन्होंने मुल्क का दिफा करना है, मुल्क की हिफाजत करनी है, अपनी जात की, सॉरी अपनी स्टेट की, अपनी रियासत की, अपने मुल्क की, अपने कस्बे की, जितनी भी है, ये उनकी हिफाजत उनके जिम्मे आ जाती है। तीसरे नंबर पे आते हैं वेश। वेश कौन से होते हैं? वेश सनत, खेती बाड़ी, तजारत और मुख्तलिफ कारोबार के लोगों के सपोर्ट होते हैं। मतलब जितना भी ये जॉब या इकोनॉमी का सिस्टम होता है वो उनके जिम्मे आ जाता है। खेती बाड़ी उन्होंने करनी है। इस जात के जो लोग होते हैं वो क्या करेंगे? फार्मर्स होंगे या ट्रेडर्स होंगे। मतलब या तो वो तजारत करते होंगे या वो किसान होंगे। इस तरह की जॉब या इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जिम्मे होती है। और जो फोर्थ है वो कौन सा उनकी कास्ट है? वो है शूद्र। शूद्र क्या है? कि सबसे निचले दर्जे की जात तस्वर की जाती है, कि सबसे घटिया लोग या वो लोग जो नीचे उनके काम करते हैं, सफाई वगैरह या मुलाजिम रखे होते हैं या सर्वेंट जो होते हैं, वो सबसे उनके निचले दर्जे की जात होती है। इनके जिम्मे कौन कौन से काम होते हैं? शूद्र सबसे घटिया जात समझी जाती है। शूद्रों के स्पुर्द आर्यों की खिदमत करना, सफाई का ख्याल रखना, जानवरों की खालें उतारना, जूते काटना और दूसरे निचले दर्जे के काम दिए जाते हैं। मतलब कोई भी छोटा मोटा काम है जो वो खुद नहीं कर सकते, सफाई का काम या इस तरह के जो काम होते हैं, वो सारे उनको हो जाते हैं। इट्स मीन दैट कि उनको कास्ट में फोर पीपल को, जैसे इकोनॉमी की बेस पे लोग डिवाइड होते हैं कि ये मिडिल क्लास लोग हैं, ये अपर क्लास लोग हैं और ये लोअर क्लास लोग हैं। इसी तरह उनकी कास्ट की बेस पे डिवीजन हुई है लोगों की, कि ये ब्राह्मण हैं तो ये सबसे एलीट है, सबसे ऊंचले दर्जे पे। दूसरे नंबर पे किश्तरी हैं, फिर वेश आ जाती हैं और सबसे निचले शूद्र आ जाते हैं। और उनकी एक और क्या चीज है कि दे वर फोर्सफुली केप्ट अवे फ्रॉम द सो कॉल्ड सुपीरियर कास्ट ऑफ द पीपल, कि शूद्रों को जो होता है उनको दूर रखा जाता है, कि जो वो उनको हाथ तक ना लगाएं, जो उनकी सबसे सुपीरियर कास्ट है ब्राह्मण, जो रिलीजियस ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, कि वो उनको हाथ तक ना लगाएं, वो उनसे दूर रहते हैं। if they touch to any of the person belonging to superior classes they would become wealthy। मतलब वो गंदा हो जाता है। जिस तरह से कहते हैं हमले कोई गलत चीज है, किस तरह से कोई
कीचड़ वगैरह हमारे कपड़ों पे आ जाता है तो हम गंदे हो जाते हैं। इसी तरह अगर उन्हें जो सबसे निचले दर्जे की जो जात है वो कौन सी है, शुद्ध, वो ऊपर वाले दर्जे की जो जात है उनको अगर वो हाथ भी लगा ले या उनकी चीजों को टच भी कर ले तो वो क्या कर हो जाती थी, वो नापाक हो जाती थी, वो गंदी हो जाती थी, तो वो उसको इस्तेमाल नहीं करते थे। मतलब उनका रहन सहन, उनकी सारी चीजें उनसे अलग रखी जाती थी। इस तरह से तो हम कह सकते हैं कि वो उनकी खाने पीने की चीजों को भी हाथ नहीं लगा सकते थे, वो एक जगह पे इकट्ठे रह ही नहीं सकते थे। जो थर्ड चीज आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो देखेंगे, वो हमारा है बुद्धाइज्म। मतलब बुद्ध मत का जो निजाम है वो, there across lot of social problems due to the caste and creed system. People wanted to get rid of this system. The circumstances gave birth to another religion called Buddhism. Its founder was Gautam Buddha. Gautam Buddha was born in Nepal, Vastu, in 1563 BC. He was given the name Siddhartha, which was later known as a Gautam Buddha. As he grew up, he realized the miseries of people around him. He strictly disliked the caste and creed system. He was keen to change that system. He left the royal place at the age of 29 and went into the jungles of Gaya. He struggled a lot but could not find peace anywhere. At last, one night, he got spiritual knowledge while sitting under a tree. Gautam Buddha rejected the caste and creed system in Hindu society and told them about equality. अब हम लोगों ने इसकी इंग्लिश में रीडिंग कर ली, देन हम लोग इसको उर्दू में देखेंगे और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि हम लोगों को अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी इसमें ये क्या चीज है और क्या इस बारे में इसमें बात हो रही है। वो जात पात के निजाम को सख्त नापसंद करता था, वो इस निजाम को बदलना चाहता था। सॉरी, उर्दू ट्रांसलेशन बार से देखते हैं। जात पात की तकसीम की वजह से बहुत सारी मशरकी बुराइयां पैदा हो गई। इन हालात की वजह से एक नया मजहब बुद्ध मत वजूद में आया। इनके बानी का नाम गौतम बुद्धा था। गौतम बुद्धा नेपाल में पैदा हुआ था, बाद में इसको सिद्धार्थ का नाम दिया गया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, इसने अपने इर्द गिर्द के लोगों की परेशानियों को महसूस किया। वो जात पात के निज़ाम को सख्त नापसंद करता था, वो इस निज़ाम को बदलना चाहता था। 29 साल की उम्र में उसने अपना महल छोड़ दिया और जंगलों में निकल गया। इसने बहुत कोशिश की लेकिन उसे कोई कहीं सुकून नहीं मिला। आखिरकार एक रात दरख्त के नीचे बैठे हुए उसे रूहानी इल्म हुआ। गौतम बुद्धा ने जात पात के निजाम को हिंदू मत में नापसंदीदा करार दिया और बराबरी को फरोग दिया। अब क्या चीज हमने देखी है कि ये गौतम जो बुद्ध है, गौतम बुद्ध एक पर्सन का नेम है, ठीक है। ये क्या हुआ कि ये नेपाल में पैदा हुआ है। इसको जो निज़ाम है, ये मशरकी निज़ाम है कि जात पात की बेस पे लोगों को डिवाइड किया गया है। ये सुपीरियर लोग हैं, ये इंफीरियर लोग हैं, कि उनको छू नहीं सकते, कि उनका खाना नहीं खा सकते, उनके साथ बैठ नहीं सकते, कि सब ह्यूमन बीइंग बराबर हैं। जब वो बराबर हैं तो उनको इक्वालिटी की बेस पे जज किया जाना चाहिए, ना कि इस बेस पे जज किया जाना चाहिए कि ये इस जात से ताल्लुक रखता है या इस जात से ताल्लुक रखता है। तो वो इस जात की वजह से बहुत सारी बुराइयां जन्म लेती हैं। कि क्या हुआ कि जब एक सोशल कॉन्टेक्ट ही आपका खत्म हो जाता है, कि हम एक दूसरे इंसान को इस बेस पे उसे नापसंद करना शुरू कर देते हैं कि ये हमारी जात का नहीं है। हमने जिसके साथ सोशल कॉन्टेक्ट रखना है वो सिर्फ हमारी जात से बिलोंग करता हो। तो इस वजह से बहुत सारी मशर्ती जो बुराइयां वो पैदा शुरू होना हो गई थी, और लोग भी इस बुराइयों की वजह से और इस कास्ट जो जात पात का निजाम का, इसको सख्त नापसंद करते थे। तो फिर क्या हुआ कि उस वक्त एक बंदा पैदा हुआ, उसका क्या नाम था, गौतम बुद्धा। उसने इस निजाम को गलत समझा और इसको सबको रिजेक्ट कर दिया, डिसलाइक किया, नापसंद किया। और इसने क्या किया, एक नए जो था मजहब की बुनियाद रखी
और वो कौन सा था, वो बुद्ध मत था। इसने अब क्या कहा, इसने कहा कि इसको ये निज़ाम बहुत ही नापसंद था, वो कुछ करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। फिर क्या किया उसने कि अपनी वो एक शहजादा था, तो उसने क्या किया कि अपनी जो महल था उसको छोड़ दिया। किस एज में, 29 ईयर की एज में उसने अपने महल को छोड़ दिया और बाहर जंगलों में चला गया, सुकून उसे मिले किसी चीज की तलाश में। जब वो बाहर गया तो वहां पे भी उसको सुकून नहीं मिला रूहानी। उसे जो चीजों को वो देख के, कास्ट पात जात पात के निजाम को देख के, इन चीजों से तंग आके वो बाहर गया था कि मुझे कहीं पे सुकून मिले, मैं कुछ ऐसी चीजें हासिल करूं कि इन चीजों इनको निजात दिला सकूं। लेकिन उसे कुछ भी कहीं भी सुकून नहीं मिला। आखिरकार क्या हुआ कि एक रात वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, उसे रूहानी इल्म होता है, रूहानी ताकतें मिलती हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वो इक्वलिटी को फरोग देता है, वो वापस आता है और लोगों को बताता है कि इस निजाम को जो आप लोग फॉलो कर रहे हैं इसको रिजेक्ट करना चाहिए, और आप लोग क्या करें, एक ऐसे मजहब को एक्सेप्ट करें जहाँ पे सबको इक्वलिटी दी जाए। और इसने क्या 8 प्रिंसिपल दिए। वो 8 प्रिंसिपल कौन से हैं, पहले हम लोग उनको पढ़ लेते हैं, फिर उसको डिस्कस करेंगे। ही narrate the following 8 principle. One should lead a simple life. One should avoid wine, gambling, and telling a lie. The monopoly of Hindu Brahman must be finished. No one should be considered inferior. Respect should be given to humanity. Bloodshed should be avoided. Caste and creed system should be abolished. All humans must be treated equally. The teaching of Gautam Buddha had great influence over poor people belonging to lower caste. People started to embrace the teaching of Gautam Buddha. These religions spread over India, Afghanistan, Burma, China, and Japan. उसने क्या किया, उसने 8 प्रिंसिपल दिए। वो कौन कौन से थे कि सादा जिंदगी गुजारनी चाहिए, शराब जुए और झूठ बोलने से बचना चाहिए, हिंदू ब्राह्मण की आजादारी खत्म होनी चाहिए, किसी को भी कम तरीन नहीं समझना चाहिए, इंसानियत को एहतराम किया जाना चाहिए, खून रेजी से बचना चाहिए, जात पात के निज़ाम को ख़त्म करना चाहिए, तमाम इंसानों को यकसा जो है हकूक मिलने चाहिए। गौतम बुद्धा की तालीमात का गरीबों और ख़ास तौर पर निचले तबकों के लोगों पर बहुत असर हुआ। लोगों ने गौतम बुद्धा की तालीमात को अपनाना शुरू किया। ये मज़हब हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, चाइना और जापान तक फैला। उसने क्या किया, उसने इक्वालिटी को फ़रोग़ दिया कि कास्ट ऑफ जो क्रीड सिस्टम था उसमें लोगों को कि ये निचले तबके के लोग हैं, ये ऊपर वाले तबके के लोग हैं, इस बेस पे उनको डिवीजन दी जाती थी। उसको ये चीजें पसंद नहीं थी। उसने क्या किया, इस चीज को खत्म कर दिया, इस चीज को अबॉलिश कर दिया, इस मजहब को कहा कि रिजेक्ट कर दिया। उसने एक नया मजहब दिया, एक नए प्रिंसिपल दिए, नए असूल दिए। और उन असूलों में क्या था कि तमाम इंसानों को इक्वलिटी, ये सबसे मेन चीज है कि तमाम इंसानों को इक्वलिटी की बेस पे ट्रीट किया जाना चाहिए, इक्वल सलूक किया जाना चाहिए, एक सिंपल लाइफ गुजारनी चाहिए, सिंपल जिंदगी गुजारनी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, जुआ नहीं खोलना चाहिए और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। और जो हिंदू मत, ये कि हिंदुओं के मजहब में कि ब्रह्म सबसे, ब्राह्मण जो उनकी कास्ट है वो सबसे ऊंची है, इसको भी खत्म होना चाहिए, खत्म कर दिया जाना चाहिए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इस जात के लोग रिलीजियस जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तमाम जो इंसान है वो ह्यूमन बींग्स हैं, उनको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, गॉड क्रिएटेड है, तो उनको कोई भी ये रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, ये किसी भी जात के साथ मुंसलिक नहीं है। उसने इस चीज को अबॉलिश किया। नो वन शुड बी कंसिडर इंफीरियर, कि किसी को भी इंफीरियर कंसिडर नहीं, क्योंकि सुपीरियर और इंफीरियरिटी का जो सिस्टम था उसको ही उसने अबॉलिश कर दिया। हर इंसान और खून रेजी, मतलब इसकी माशरे में बुराइयां पैदा हो रही थी। जब वो निचले तबके के लोग थे वो ऊपर वाले तबकों को छू लेते थे, उनकी चीजों को हाथ लगा लेते थे, तो वो उनके क्या करते थे, उनके साथ तशद्दुद करते थे, उन्हें मारते थे। तो कहते ये तशद्दुद, ये मारपीट, ये सारा कुछ खत्म होना चाहिए, ये सारी चीजें। फिर क्या हुआ, जब उसने ये अपने तालीमात दी, अपने रिलीजियस, एक नए रिलीजियस को इंट्रोड्यूस करवाया, एक नई रिलीजियस के बारे में लोगों को बताया, तो वो लोग जो लोअर क्लास के लोग थे, जो इन सब चीजों को बर्दाश्त कर रहे थे,
उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, लोअर क्लास के लोगों ने, पीपल ने इसकी तालीमात को मानना शुरू किया, और क्या हुआ कि ये मज़हब दूर दूर तक फैल गया, चाइना में, अफगानिस्तान में, बर्मा में, जापान में और हिंदुस्तान में। आज के लेक्चर में हम लोग इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी डिटेल मजीद हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा हम लोग करेंगे और तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी, सारी चीज़ें ग्रास्प करना मुश्किल हो जाएंगी। हम लोग फिर भी लिटिल बिट इनको दोबारा माइंड में रिवाइज करते हैं, ताकि आप लोगों की चीज़ें रिवाइज भी हो जाएं और हमारा आप लोगों को रिवाइज हो जाएगी माइंड में अगेन से, और फिर हम लोग लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। पहले हम लोगों ने हिंदुइज्म देखा कि वो किस तरह का निज़ाम है। हिंदुइज्म में क्या है कि लोग, वो एक बहुत ही पुराना मजहब है, उस पुराने मजहब में लोग किस बेस पे एक दूसरे को जज करते हैं वो देखा। उनका क्या यकीन है, उनका क्या ईमान है। उनका ईमान ये है कि इंसान को उसके अच्छे और बुरे अमाल की बेस पर सजा मिलती है और अजर मिलता है। किस तरह से अजर मिलता है? अगर वो अच्छे अमाल करेगा तो वो दोबारा इंसान के रूप में पैदा होगा, और अगर वो बुरे अमाल करेगा तो वो दोबारा जानवर के रूप में या किसी परिंदे के रूप में पैदा होगा। ये उसकी पनिशमेंट होगी, ये उसकी सजा होगी जो उसने पहले जन्म में अपने गुनाह किए होंगे। और अगर वो दोबारा से गुनाह करेगा तो दोबारा से ऐसी हालत में पैदा किया जाएगा। लेकिन दोबारा से अगर वो अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है, माफी मांग लेता है, तो दोबारा जब वो पैदा होगा तो वो किसी अच्छी शक्ल में पैदा होगा। ये उनका बिलीव है। फिर हिंदुइज्म को 4 बेस पे डिवाइड किया हुआ जात पात के निज़ाम में। उसमें 4 जातें हैं। पहले कौन सी है? पहले उनके पास ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, और देन उनके पास शूद्र आते हैं। ब्राह्मण कौन से हैं? ब्राह्मण रिलीजियस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं वो सारी ब्राह्मण के कंट्रोल में होती हैं। फिर आ जाता है हमारा मुल्क का दिफा, कि मुल्क की हिफाजत वो किश्तरी परफॉर्म करते हैं। किश्तरी के जात के जो लोग होते हैं उनके जिम्मे ये चीजें होती हैं। और फिर आ जाते हैं हमारे पास वेश। वेश तजारत का काम करते हैं, या किसान जो लोग होते हैं वो होते हैं। और शूद्र सबसे निचले तबके जो लोग हैं वो शूद्र होते हैं। उनके काम जिनमें काम होते हैं कि उन्होंने सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, मतलब इनफीरियर जो काम होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं जो बड़ी जात के लोग नहीं कर सकते, वो छोटी जात के लोग परफॉर्म करते हैं। उसके बाद एक पैदा होता है, फाउंडर पैदा होता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है गौतम बुद्धा। और उसको सिद्धार्थ का नाम दिया, सिद्धार्थ पहले उसका नाम होता है, फिर उसके बाद में गौतम बुद्धा का नाम दिया जाता है। और वो नेपाल में पैदा होता है। जब वो इस निज़ाम को देखता है तो वो इस निज़ाम को सख्त नापसंद करता है। वो उस निज़ाम को बदलना चाहता होता है। इस निज़ाम को बदलने की कोशिश में वो जंगलों में निकल जाता है, सुकून की तलाश में निकल जाता है, किसी हल की तलाश में निकल जाता है। और काफी साल वक्त गुजारने के बाद उसे रूहानी जो होता है इल्म मिलता है, या रूहानी ताकतें मिलती हैं। उसके बाद वो वापस आता है, लोगों को तबलीग देता है, एक नए दीन की तबलीग देता है। वो नया दीन क्या होता है? वो बुद्ध मत का दीन होता है। उसमें वो क्या कहता है कि ये जो जात पात का निज़ाम है इसको ख़त्म होना चाहिए। तमाम इंसानों को इक्वालिटी की बेस पे जज किया जाना चाहिए। जुआ नहीं खेलना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ये जो ब्राह्मण की आजादारी है कि रिलीजियस एक्टिविटी सिर्फ वही परफॉर्म कर सकते हैं, इसको भी खत्म होना चाहिए। और इंफीरियर और जो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स है लोगों में, ये भी खत्म होना चाहिए। ये सारी उसने अपने एक दीन की तबलीग दी। जब उसने ये दीन की तबलीग की दी तो बहुत से लोगों को उसके दीन की तबलीग पसंद आई, ये दीन उसको पसंद आया, तो लोगों ने उसके दीन को अपनाना शुरू कर दिया। खास तौर पे निचले तबके के लोग, वो लोग जो इस जात पात के निज़ाम से सबसे ज्यादा तंग थे। वो कौन से तंग थे? वो शूद्र तंग थे, क्योंकि उन्हें कोई भी हकूक नहीं मिल रहे थे सोसाइटी में। तो वो उन्होंने उसकी तलीमात को एक्सेप्ट किया और अपना लिया। फिर क्या हुआ कि फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोगों ने भी अपनाना शुरू कर दिया, और उसका जो मजहब था वो दूर दूर तक फैल गया, अफगानिस्तान में, इंडिया में, और चाइना में, और जापान में। आज के लेक्चर में हम लोग यही चीज़ें, आई होप सो दैट कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में जो बाकी की चीज़ें हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको बाकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।